Hello student, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Math. Today in my physics class, we will learn about the derived quantities and their units. What is derived quantities and what is their units? The quantities which are based on the uh, basic quantities are basic fundamental quantities and which are found by the multiplication or division by the basic quantities. We can obtain derived quantities, and on the basis of derived quantities we have written their units and their SI units. SI units, it means international units, where the units which are always always after these quantities. Quantities name, symbol, SI unit of these quantities. First है आपका energy. Energy is denoted in joule. Energy is denoted in joule, and symbol of joule is capital J. SI unit of energy is kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू. आप इसको लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. तो अगर आप सेकेंड स्क्वायर नीचे लिखेंगे तो ये पॉजिटिव वाली साइन निगेटिव वाली साइन पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव की साइन निगेटिव हो जाती है, तो ये निगेटिव साइन है अपान में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो kg मीटर स्क्वायर अपान सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज n is equal to 1 upon n. T is equal to 1 upon n. Frequency is equal to named in hertz. Frequency is measured in hertz and symbol of hertz is Hz, and the SI unit of the hertz is second inverse or 1 upon second. Third है power. Power is represented in watt. Unit of power is watt. Symbol of watt is capital W. SI unit of the watt or power kg meter square second minus 3. Second power minus 3. Next आपका है voltage. Voltage is denoted in volt. Measure in volt. And symbol of voltage is capital V. SI unit of voltage is kg meter square second minus 3 upon ampere, or written as kg meter square second power minus 3 ampere minus 1. Charge. Charge is measured in coulomb. Charge is measured in coulomb, and coulomb is denoted by symbol capital C, and the SI unit of the charge is ampere second. A, it means ampere. S means second. Ampere second. Displacement. Displacement is measured in meter and denoted by the symbol D, and SI unit of displacement, it is as distance measured in meter. Movement. Movement is measured in Newton meter. Movement is measured in Newton meter, and symbol of the Newton meter, capital T, is denoted by, and the SI unit of the movement, Newton meter. Newton meter. N, it means Newton. M means meter. Work. Work, the unit of the work is joule. Generally, work is measured in joule, and work is denoted by capital W, and the SI unit of the work is Newton meter. Newton meter. अगर आप स्टूडेंट किसी भी पावर को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं. प्लस का माइनस में हो जाता है और माइनस का प्लस में हो जाता है. दीज क्वांटिटीज आर फॉर्म्ड बाय द फंडामेंटल यूनिट्स. फंडामेंटल 7 units, and by the multiply and division of the fundamental quantities we have obtained the name and SI unit of the quantities. These SI units are based on the
These SI units are the based on the formula of the quantities, physical quantities, and their dimensions are also depend on the SI units of the physical quantities. Derived quantities are those quantities which are formed by the seven fundamental quantities and totally depend upon the seven fundamental quantities. These are obtained by these seven quantities known as derived quantities. Derived quantities are not independent, are totally dependent on seven units, and these quantities are formed by the seven units और सेवन बेसिक यूनिट्स. इसके पहले हमने आपसे चर्चा किया था कि वो सेवन बेसिक यूनिट्स कौन से हैं जिन पर ये फार्मूला बनाया जाता है. जैसे देखिए स्टूडेंट, कोई भी फार्मूला है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस इट मीन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो मेज़र किया जाता है वो मीटर में मेज़र किया जाता है, क्योंकि हमेशा कोई भी लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, उसको मीटर में ही ये यूज किया जाता है. इसी तरह वर्क आपका जूल में है. ठीक है. अब और आपको कल हम बताए थे कि जूल को किस फॉर्म में लिखा जाता है और कौन सा फॉर्म आने पर वहाँ पर उस स्थान पर क्या लिख दिया जाता है, जूल. तो ये हमारे डेराइव्ड यूनिट से, जिनको हमने फंडामेंटल यूनिट से प्राप्त किया है, फंडामेंटल यूनिट से ऑब्टेंड किया है. तो डेराइव्ड यूनिट वही यूनिट होते हैं जो खुद में नहीं होते बल्कि फंडामेंटल यूनिट से फॉर्म किए जाते हैं, और ये हमेशा ही ये डिपेंड होते हैं सेवन बेसिक यूनिट्स और सेवन फंडामेंटल यूनिट्स पर. तो ये आज आपके थे क्वांटिटीज, सम क्वांटिटीज एंड देयर नेम, देयर सिंबल्स एंड देयर एसआई यूनिट्स. तो हम आपको इसके आगे फिर बताएंगे, ये जब डेराइव्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो बताएंगे कि आप कैसे फार्मूले से या एसआई यूनिट से आप कैसे डायमेंशंस निकालते हैं, क्योंकि डायमेंशंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं. तो हम डायमेंशंस की भी चर्चा करेंगे, और आगे भी ये जो हमने आपको लेंथ बताया, विड्थ बताया, हाइट बताया था, उस पर भी हमने आपकी चर्चा करेंगे कि मीटर कितने किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, और ये भी हम आपको बताएंगे. लेकिन आज हम आपके सामने डेराइव्ड क्वांटिटीज और उनकी यूनिट के बारे में चर्चा किया है, और जो अभी बाकी हैं उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश करने के बाद आगे हम डायमेंशंस पे चलेंगे, ताकि वहाँ पे फार्मूला भी लिखेंगे और एसआई यूनिट भी बताएंगे, उसके साथ ही साथ उसका डायमेंशंस भी बताएंगे, ताकि आसानी से आप डायमेंशंस किसी का लिख सकें. जैसे एग्जामिनेशन में आता है कि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस क्या होंगे या पावर की डायमेंशंस क्या होंगे, तो आप वहाँ पर नहीं कैलकुलेट कर पाते हो. तो जैसे वहाँ पर क्या होता है, केजी है, किलोग्राम है, तो उसको हम यम से डिनोट करते हैं. मीटर है तो यल से डिनोट करते हैं. सेकंड है तो टी से डिनोट करते हैं. तो हम जैसे यहाँ पे लिखे हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3, तो वहाँ पे लिखा जाएगा, वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यम एल स्क्वायर T-3 और ब्रैकेट में हुआ. तो हम आपको डायमेंशन निकालना बताएंगे. बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ के भी डायमेंशंस होते हैं, उन डायमेंशंस को निकालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. लेकिन पहले आप बेसिक चीज़ें इस मेज़रमेंट एंड यूनिट चैप्टर्स में आप ये जान लें, तो उसके आगे मुझे बताना थोड़ा सा और ईजी होगा. तो ये आप जानिए कि जो एम्पियर होता है, एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी का होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं करंट, उसका यूनिट होता है एम्पियर. न्यूटन जो है स्टूडेंट, वो फोर्स का यूनिट होता है. जूल जो है वो वर्क और एनर्जी का यूनिट होता है. तो स्टूडेंट, आगे भी इसी क्लास की तरह आगे भी क्लासेस जारी रहेंगी. थैंक यू सो मच आज के लिए. कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच. गुड आफ्टरनून. बी ऑलवेज हैप्पी एंड बी हेल्दी इन योर लाइफ.
एंड शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस कॉन्सेप्ट में होती है तो आप मुझसे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में इसी तरह कंटिन्यूटी को बनाए रखिए और हम आपको आगे इसी चैप्टर में आगे भी चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।